السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، دسمبر کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیل کی فوج نے شمالی غزہ کی پٹی میں بدھ کے روز لڑائی میں اپنے 10 فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے گزشتہ روز 250 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں فوج کے بقول اس ٹیم کو نشانہ بنایا گیا جو اسرائیل پر راکٹ داغنے کی تیاری کر رہی تھی۔ غزہ میں ایک آپریشن کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے اکتوبر میں حماس کے حملے کے دوران یرغمال بنائے گئے 2 افراد کی لاشیں بازیاب کی اور اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ اسرائیلی دفاعی افواج کے ترجمان نے کہا کہ حماس غزہ کے پرہجوم حصوں میں زیر زمین یرغمالیوں کو چھپائے ہوئے ہے، جس سے انہیں بچانے کی کوششیں پیچیدہ ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہر یرغمالی کو آزاد کرانے کے اپنے مشن سے باز نہیں آئے گا۔ فلسطینی شہریوں پر جنگ کے اثرات کے بارے میں نئے انتباہات کے باوجود غزہ میں مسلسل لڑائی ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے سربراہ فلپو گرینڈی نے بدھ کو کہا کہ ہم مزید شہریوں کی ہلاکتوں اور مصائب اور مزید نقل مکانی کی پیشگوئی کر رہے ہیں، جس سے خطے کو خطرہ ہے اور یہ انتہائی افسوسناک امر ہے۔ پوپ فرانسس نے غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی اور حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کے اپنے مطالبے کی تجدید کی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر اپنی اندھا دھند بمباری کی وجہ سے بین الاقوامی حمایت کھو رہا ہے اور بنیامن نیتن یاہو کو خود کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ان کے اس بیان سے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ان کے تعلقات میں ایک نئی دراڑ پیدا ہو گئی ہے۔ صدر بائیڈن کی یہ ریمارکس اسرائیل حماس جنگ سے نمٹنے کے حوالے سے اب تک دیے گئے بیانات میں سب سے اہم تھے، جو کہ حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیلی حمایت کے موقف کے بالکل برعکس ہیں۔ صدر بائیڈن کے بیان پر اسرائیلی فوج اور حماس دونوں کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اقوام عالم کی بھاری اکثریت نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی حمایت میں ووٹ دیا ہے۔ یہ ووٹ امریکہ اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی تنہائی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ 193 رکن ملکوں میں سے حق میں 153 ووٹ آئے، مخالفت میں 10 جبکہ 23 غیر حاضر رہے۔ قرارداد کی مخالفت میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ 8 دیگر ممالک شامل تھے۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر اپنے پہلے سرکاری دورے پر امریکہ میں ہیں۔ وائس آف امریکہ کی کارلا باب نے امریکی محکمہ دفاع کے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ آج بدھ کو جنرل عاصم منیر کی ملاقات امریکی وزیر دفاع سے پینٹاگون میں ہوگی۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے بدھ کو اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی۔ فریقین وکلاء کے دلائل کے بعد عدالت نے کہا کہ خفیہ سائفر کو جلسے میں لہرایا گیا اور اس کے مندرجات کو زیر بحث لایا گیا۔ ایسا کرنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرم ہے۔ عدالت نے کہا کہ بطور وزیر اعظم عمران خان کو سائفر رکھنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ سائفر کو جان بوجھ کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس عمل سے ملک کے تشخص اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچا۔ فاضل جج نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر عائد کردہ فرد جرم پڑھ کر سنائی، تاہم دونوں رہنماؤں نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के केसेस की समाअत से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया जो 5-1 की अक्सरियत से जारी किया गया। जस्टिस मसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स रोकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने भी इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थीं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के अड्डे पर मंगल के खूनी हमले के बाद तालिबान हुकूमत से हमले के मुर्तकिब अफराद और अफगानिस्तान में टीटीपी की क़यादत को हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करने को कहा है। सेक्रेटरी खारजा ने अफगान उबरी हुकूमत के नाज़िमुल उमूर को तलब किया ताकि दराबिन डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर आज के मोहलिक दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पाकिस्तान की तरफ से सख्त एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए। तालिबान सिफारतकार से यह भी कहा गया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल को रोकने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमले का ताल्लुक अफगानिस्तान से नहीं है। उन्होंने तालिबान के ज़ेर इंतजाम टीवी चैनल RTA को बताया कि अगर पाकिस्तान सबूत फराहम करे तो हमले की तहकीकात करेंगे। भारत की पार्लियामान में दिन के 1 बजे उस वक्त सिक्योरिटी में जबरदस्त चूक हो गई जब 2 अफराद विजिटर्स गैलरी से ऐवान के अंदर कूद गए और उनमें से एक ने पीले रंग की गैस छोड़नी शुरू कर दी। ये वारदात पार्लियामेंट हाउस पर दहशतगर्द हमले की 22वीं बरसी के मौके पर हुई है। 13 दिसंबर सन 2001 को पार्लियामेंट हाउस पर दहशतगर्द हमला हुआ था जिसमें 5 सिक्योरिटी जवान हलाक हो गए थे। उस वक्त ऐवान में दीगर अरकान के साथ सीनियर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भी मौजूद थे। ऐवान में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। अरकान और सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर दोनों को पकड़ लिया। पकड़े जाने के दौरान एक शख्स ने झुककर अपने जूते से गैस कनिस्टर निकाला और फिर ऐवान में पीले रंग का धुआं फैल गया। उसी वक्त पार्लियामेंट के बाहर भी 2 मजीद अफराद को पकड़ा गया। उनके पास भी धुएं का कनिस्तर था। उन्होंने पीले और सुर्ख रंग का धुआं छोड़ा। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच की जा रही है। आबो हवा के सरबराही इजलास COP28 के आखिरी रोज फॉसिल फ्यूल के बतदरीज खात्मे के मुआहदे पर इत्तेफाक किया गया। COP28 के सरबराही इजलास में यह पहली बार हुआ है कि मुल्कों ने तेल, गैस और कोयले के इस्तेमाल से दूरी इख्तियार करने पर इत्तेफाक किया है जो कि आलमी तवानाई का तकरीबन 80% हिस्सा है। मुज़ाकरात को ओपेक के तेल पैदा करने वाले ग्रुप के अरकान और उसके इत्तेहादियों खासतौर पर सऊदी अरब की तरफ से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन बातचीत से वाकिफ ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने भी COP28 मुआहदे का खैर मकदम किया और इखराज को कम करने के मौक़िफ़ को दोहराया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत को रूसी मिसाइलों की एक बौछार ने निशाना बनाया है जिसके नतीजे में बुध के रोज कम से कम 45 अफराद जख्मी हो गए। उधर सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी हुक्काम पर जोर दिया है कि वो उनके मुल्क को रूस के हमले से लड़ने में मदद के लिए $61 बिलियन की नई इमदाद की मंजूरी दें। कीव के मेयर विटाली क्लित्स्को ने कहा कि गिराए गए मिसाइलों से गिरने वाले मलबे ने बच्चों के अस्पताल और शहर के पानी के निजाम को नुकसान पहुंचाया है, जबकि कीव की फौजी इंतजामिया के सरबराह सरी पॉप्को ने कहा कि मलबा गिरने से मुतादिद मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। सदर ज़ेलेंस्की ने बुध को सोशल मीडिया पर कहा था कि रूस ने एक बार फिर साबित किया है कि वो एक घिनौना मुल्क है जो रात के वक्त मिसाइल फायर करता है और सर्दियों के दौरान रिहायशी इलाकों, किंडरगार्टन्स और तवानाई की सहूलियात को निशाना बनाने की कोशिश करता है। बाइडन इंतजामिया ने मंगल को यूक्रेन के लिए पहले से मंजूर शुदा वसाइल से $200 मिलियन तक की नई फौजी इमदाद का ऐलान किया, जिसमें फजाई दिफाई मिसाइल और अज्जा शामिल हैं।
यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल की दोपहर सदर जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस की एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कैपिटल हिल का दौरा करने के बाद कानून साजों से यूक्रेन के लिए मजीद फौजी इमदाद मंजूर करने की दरखास्त की। म्यांमार में नस्ली अकलियती बागी ग्रुपों के इत्तेहाद ने मुल्क की आमरीत को शिकस्त देने के अपने अज़्म का इरादा किया है। हुक्मरान फौज ने कहा है कि उसने बागियों के साथ चीन की सालिसी में बातचीत की है। म्यांमार में गुज़श्ता 6 हफ्तों में लड़ाई में शिद्दत आई है। 3 ग्रुपों के ब्रदरहुड अलायंस ने चीन के साथ शिमाली सरहद के करीब फौजी अहदाफ पर मरबूत हमले शुरू कर दिए हैं। फौज ने पीर के रोज कहा कि उसने बागियों और तनाज़े के दीगर फरीकों से मुलाकात की है और बातचीत का एक और दौर माह के आखिर तक होना है। कोई और तफसीलात फराहम नहीं की गई। इत्तेहाद में शामिल तीनों ग्रुपों ने राइटर्स की जानिब से तबसरे के लिए बार बार की दरखास्तों का जवाब नहीं दिया। चीन की वजारत खारजा ने मंगल को कहा कि वो ये देखकर खुश है कि म्यांमार तनाज़े के फरीकैन अब मुज़ाकरात करते हैं और मजीद मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद अब इजाजत चाहेगा। अल्लाह हाफिज।